In the quiet town of Savai Madhopur, the Rajiv Gandhi Regional Natural History Museum is often an afterthought for tourists visiting the district for the Ranthambore Tiger Reserve. But for those who fail to catch a glimpse of the Royal Bengal tiger in its natural habitat, an exhibit at the museum hosts a taxidermy of a tiger cub. The diorama mimics a natural scene, complete with birds, trees, and distant calls of wild animals, along with a plaque telling visitors all there is to know about the wildcat. What many visitors do not know is that this cub was almost lost to a fire in New Delhi in 2016. But thanks to the immense patience of Dr. Mohammad Yunus, the museum's lead scientist, the dead cub gained a new lease of life. The Royal Bengal tiger cub is not alone. Over 100 such taxidermies, as well as fossils of mammals, reptiles, birds, and other organisms, were moved to Savai Madhopur from New Delhi after a massive fire wiped out most of the capital's natural history collection in 2016. Since then, all of these specimens have been under the care of Dr. Yunus, who has single handedly managed to breathe in life into the dead. We are with Dr. Mohammad Yunus at the Rajiv Gandhi Natural History Museum at Savai Madhopur, and we are about to see some of the most interesting specimens that came from Delhi to this place to get restored after the massive fire in 2016 destroyed some of these very precious property that India has. Now, thank you so much, sir, for giving us your time. What I wanted to know from you was, like when that fire happened, what was it like over here when you received all those packages full of specimens? How many of them were there? What conditions did you see? Can you describe some of that for us? एक्चुअली जो आफ्टर मैसिव फायर अटैक जितने भी स्पेसिमेन यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए दिल्ली से इस म्यूज़ियम के लिए, तो पहले हम लोगों ने दिल्ली में उसको पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन से स्पेसिमेन उसको मतलब रिटेन कर सकते होते हैं। उनकी कंडीशन बेस हमने अलग अलग बॉक्स में पैक किया, क्योंकि हम सारे बॉक्स में एट ए टाइम एक ही स्पेसिमेन का ग्रुप अगर पैक करते तो दूसरे स्पेसिमेन भी ख़राब हो जाते थे। तो फायर को मतलब बुझाते टाइम उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर या और अदर केमिकल भी फायर ब्रिगेड ने यूज़ किया। उस वजह से वो सारा केमिकल और मतलब पानी उस पर मतलब स्पेसिमेन पे सारे शोकेसेस में और डायरोज में चला गया। उससे वो सारा ख़राब होना शुरू हो गया, क्योंकि चूँकि ये मतलब बायोडिग्रेड होना शुरू हो गया। उसमें डर्मिस्टिक बीटल, इवन उसकी जो हेयर थे वो लूजन होना शुरू हो गया। इवन ड्राई होने के बाद में ब्रिटल होना शुरू हो गया। तो वो एक मतलब कंडीशन हो गया कि वो शायद ख़राब हो गया, अब वो रिटर्न नहीं कर पाएंगे। When the print visited Savai Madhopur, Yunus was working on a gliding squirrel. The fur of the taxidermy had a layer of soot and dust. देन यहाँ पर हम लोगों ने मतलब स्पेसिमेन बेस्ड स्टडी किया कि कौन से स्पेसिमेन कितना टाइम मतलब ठीक होने में, क्योर कर लेने में रहेगा, या कौन से स्पेसिमेन में कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते होते हैं, या कौन सी वेस्ट अवेलेबल जो हमारे पास में सॉल्यूशंस और केमिकल्स हैं उसको विद इन शॉर्ट पीरियड में हम जो है डायरोमा या शोकेस में किस तरीके से पहुंचा सकते होते हैं। क्योंकि ये जो स्पेसिमेन है बहुत प्रेशियस स्पेसिमेन थे, गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी, तो हम नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से इसमें से एक स्पेसिमेन भी वेस्ट हो जाए। The restored specimens are awaiting their new home in Delhi. A 6.5-acre plot at Bhairo Singh Marg has been allocated for a new natural history museum at the national capital. Naz Rizvi, director of the National Museum of Natural History, said that the proposal for the museum is prepared and pending approval from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Dr. Yunus explained that keeping the specimen in exhibits helped make sure that they were regularly monitored for damage, as well as visitors got a chance to see them. ये सब दिल्ली से शिफ्ट हुआ। आफ्टर ट्रीटमेंट हम लोगों ने इसमें केवलादेव नेशनल पार्क में लगा दिया।
जैसा कि हम देख रहे हैं तिब्बतन याक, जब ये वहाँ दिल्ली से इधर ट्रांसफ़र हुआ तो ये जितने भी इसके हेयर्स हैं पूरा मतलब एक तरीके से मतलब पूरा गठरी बन गया था। ये कहीं पर भी आप अभी एक एक बाउंस दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। इवन जब ये इसमें डस्ट और डर्ट और केमिकल्स हुआ था तो ये सब जो था ख़राब हो गया था। इवन इसके जो हेयर्स थे मतलब लूजन होना शुरू हो गया था। फिर हम लोगों ने इसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया। आज इस कंडीशन में है कि ये आने वाले टाइम में लगभग मोर देन 200 ईयर्स तक ये अच्छे से रहेगा। इवन हम लोग आफ्टर इंटरवल ऑफ 20 डेज़ इसमें हम फिर भी फ्यूमिगेशन, केमिकल फ्यूमिगेशन करते हैं। अब ये रेडी है, चाहे वो एज पर इंस्ट्रक्शन दिल्ली म्यूज़ियम में जाए या हमारा एक नया सेंटर गैंगटॉक में इनोग्रेशन होने जा रहा है, वहाँ पर भी जा सकता है ये, क्योंकि ये वहाँ का स्टेट एनिमल है तो इसके लिए हम लोगों ने इसको रेडी किया है। अच्छा, जब ये स्पेसिमेन इधर शिफ्ट हुआ था तो चूँकि वाटर इसके ऊपर काफ़ी गिरा था तो इसकी जो स्किन जो थी इम्बाइब हो गई थी। स्किन इम्बाइब होने के बाद में फिर इसमें डर्मिस्टिक बीटल्स लग गए थे। तो डर्मिस्टिक बीटल्स की वजह से स्किन जो थी एक मतलब ब्रिटल फॉर्म में आ गई और इसके जो हेयर जो है लूजन होना शुरू हो गए थे। अभी आप देखिए कि कहीं पर भी कोई भी हेयर लूज़ नहीं हो जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया गया है। अब ये डर्मिस्टिक हम लोगों ने अपनी लेबोरेटरी में उन बीटल्स के ऊपर भी काम किया, कौन कौन से केमिकल्स लगाने से या उसके सिर्फ फ्यूम से वो बीटल्स जो है मतलब इरेडिकेट हो गए, तो वो काफ़ी इसके ऊपर काम किया था। It is not necessary that the same kind of chemicals can be used on all kinds of species. Experts have deep knowledge about what genre that specimen belongs to before starting its treatment. एक जो हमने गैलरी बनाई है बायोडाइवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान में जितना भी फ्लोरा फोना है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे रिलेटेड जो स्पेसिमेन यहाँ पर जो आए थे शूट कर रहे थे, वो हम लोगों ने ट्रीटमेंट करके उसमें मतलब शोकेसिंग किया या मतलब उसमें डायरोमा में किया। इसके अलावा हम लोगों ने एक जो गैलरी है रणथंबोर टाइगर रिजर्व की, उसमें जैसे कि हमने हायना है, टाइग्रेस है और एक मतलब लीपर्ड है, देन ब्लैक बग वगैरह, ये बहुत सारे स्पेसिमेन हम लोगों ने उसमें शिफ्ट किए। जो आज इसके अलावा जो भी स्पेसिमेन हमने शिफ्ट किए उसके साथ में हमने राइट अप और टैक्स भी दिया ताकि जो स्टूडेंट्स या बेनिफिशरीज जो यहाँ पर आते हैं वो उस चीज़ को एक कोरिलेट करें अपने आप को, और कुछ हमने उसको करिकुलम बेस भी जोड़ दिया ताकि स्टूडेंट अपने आप को यहाँ पर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको मतलब रिलेट कर सकते होते हैं। इसके अलावा हमने कुछ केमिकल, क्या क्या केमिकल यहाँ पर हमने उसमें लगाया है, कुछ कहीं हमने उसको भी डिस्क्लोज किया है। बहुत सारा हमने स्पेसिमेन उधर किया है। चूँकि आप देखेंगे उनको कि मतलब उसको देखने के बाद में पता भी नहीं चलता है कि ये स्पेसिमेन आफ्टर ट्रीटमेंट रखे गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें इंटरेस्टिंगली, कुछ स्पेसिमेन हमारे पास में इतनी बुरी कंडीशन के थे कि वो हाफ आए थे। सपोज़ बॉडी भी कुछ हाफ थी, जैसे वो शायद वो पहले से ही ऐसे रहे होंगे, तो हम लोगों ने उसकी बॉडी को भी पूरा कंप्लीट, जैसे हाफ बॉडी को हमने फुल बॉडी बनाया, देन कुछ उसको मतलब मैनिपुलेट करके कुछ गनी क्लॉथ के फाइबर्स से उसके हेयर बनाए, देन वो मतलब अभी कोई देख कर कह नहीं सकता है कि वो इंटरेस्टिंगली कि वो एक जो डैमेज पीस था जो फेंकने के लायक था, वो आज जो है अपनी खुद की स्टोरी मतलब विजिटर को बयां करता है कि वो कितना प्रीशियस है। जिस तरह आप ये लाइन को देख रहे हैं, चूँकि अभी ये बहुत अच्छी फॉर्म में है, जब यहाँ पर आया था तो ये डस्ट और डर्ट की या केमिकल्स की वजह से पूरी तरीके से ब्लैक हो गया था। हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया और अभी आप इसकी कंडीशन देख पा रहे हैं, अभी काफ़ी अच्छी कंडीशंस में है। चूँकि अगर हम पुराने फ़ोटो देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब इसके ऊपर इतना काम हुआ है। तो हमने जो सुना है कि यहाँ आप इंडिया में वन ऑफ द टॉप एक्सपर्ट्स हैं टैक्सीडर्मी के, एंड इस वक्त जो ये काम है और कौन से सेंटर्स हैं इंडिया में जहाँ पे इस तरह का काम होता है? क्या ये हर नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में ऐसे एक्सपर्ट्स हैं या अभी हमें और ज़रूरत है ऐसे एक्सपर्ट्स की इन रेस्टोरेशंस के लिए?
एक्चुअली जिस लेवल का हमारा यहाँ पर एक्सपर्ट होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो इंडिया है, अगर हम ख़ास तौर से कहना चाहें तो जो राजस्थान में जो रजवाड़े हुआ करते थे वहाँ पर तो मतलब नेचुरल हिस्ट्री स्पेसिमेन अमूमन हर मतलब रजवाड़ों के पास हुआ करता था। तो अभी वो प्राइवेट कलेक्शन उनके पास में बहुत है, या गवर्नमेंट की जितनी भी जो नेचुरल हिस्ट्री सेक्शंस हैं वहाँ पर बहुत सारे स्पेसिमेन हैं। इवन आज की डेट में क्या होता है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या नेशनल पार्क हैं या बायोस्फीयर रिजर्व हैं, वो लोग क्या करते हैं कि नेचुरल डेड अगर स्पेसिमेन होता है तो उसको बर्न कर देते हैं या उसको बरी कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी एक साइंटिफिक वैल्यूज़ जो हैं या वो मतलब स्टडी पर्पज से लोगों तक नहीं जा पाता होता है। तो मैं तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, अगर वो जो नेचुरल हिस्ट्री स्पेसिमेन को अगर वो हमारे म्यूज़ियम्स को देते हैं या किसी और म्यूज़ियम्स को भी देते हैं जो उसकी लुक आफ्टर करे या उसको माउंटिंग करे कि या उसको डिस्प्ले कर सकता होता है वो सारी एग्जीक्यूशन के बाद में, तो वो जनरली पब्लिक के लिए एक, और इवन नॉट ओनली जनरल अवेयरनेस, ये जो रिसर्च डेटा भी हमारा रिसर्च पर्पस का भी एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है। क्योंकि अगर जब तक हम किसी चीज़ में रिसर्च ना करें तो आने वाले फ्यूचर के लिए हम लोग श्योर नहीं होते हैं। तो वो अश्योरिटी के लिए हमें रिसर्च पर्पस से और नॉलेज पर्पस से ये स्पेसिमेन कलेक्ट करना चाहिए। बात होती है कि अगर इतना सारा कलेक्शंस है तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट कम है। कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी जगह अच्छा काम भी हो रहा है, जैसे BHNS में भी काम हो रहा है और भी जगह काम हो रहा है, इवन दूसरे जो नेचुरल हिस्ट्री सेक्शंस हैं काम हो रहा है। लेकिन जिस डीपली और जिस डेडिकेशन के साथ में काम होना चाहिए अभी थोड़ा सा मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि क्या होता है कि कई सारे लोग प्राइवेटली भी इस काम को करते हैं, तो वो लोग अपना कुछ ऐसा भी करते हैं कि जो प्राइवेट कलेक्शन होता है उसको देखते हैं तो उनको अलग से कुछ मतलब उनका बेनिफिट्स होते हैं। बट वो चीज़ें गवर्नमेंट सेक्शन में मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा सा और अवेयर की ज़रूरत है। इवन यहाँ पर कुछ और भी एम्प्लॉई रखने चाहिए, सिखाना चाहिए, इवन कुछ वर्कशॉप जो जैसे हम लगातार कर रहे हैं, ये हमारी भी कमी है, हमें और लार्ज स्केल पे वर्कशॉप को करना चाहिए। कुछ रहा डेडिकेशन का कि कुछ लोग इस फील्ड में आना ही नहीं चाहते, क्योंकि क्या होता है कि जब इस फील्ड में काम करते हैं तो आपको गंद, बदबू, ये सब चीज़ों से के साथ में मतलब रिलेशन मेंटेन करना होता है। With just a handful of such specimens still being restored, these relics of the past are awaiting their home at the proposed Natural History Museum in New Delhi's Bhairo Singh Marg. While the fossils and other specimens are ready to be sent to their home, the proposal for the new museum itself is yet to get a go-ahead. A giant rhino, a lion, a tiger, these are among the countless species in this museum's reserve room. Covered in plastic, they too await a space to be able to tell their history. The Savai Madhopur Natural History Museum got a new lease of life when the Delhi's Natural History Museum went up in flames. A lot of the collection has been transferred here and has been restored. Some of the restoration work, in fact, has been set up in temporary exhibits that some school students actually helped create. This has led to a new kind of interactive museum activity that students seem to enjoy and then bring in more people who can see what they created. This is Mohana Basu, Assistant Editor at The Print. If you like our work, do consider paying for a subscription to The Print. You can do so through the link in the description box below.